नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सीरीज में। टुडे यू हैव द थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर लेके हाजिर हूँ। थर्ड लेक्चर है ऑन सबलाइम पर, एंड ऑन सबलाइम वाज रिटन बाय लॉन्जाइनस, दो इट इज नॉट फॉर श्योर कि लॉन्जाइनस नहीं लिखा होगा, बट एक कॉमन कंसेंसस है कि ऑन सबलाइम इज an essay that was written by Longinus in the first century, right? Longinus on sublime के लेखक है, और sublime का मतलब क्या होता है? To elevate, right? To elevate. How to get elevation in poetry? This is the primary objective of the essay on sublime written by Longinus, right? How to get the higher status, and for this Longinus talks about sublimity. Longinus talks about what is not sublimity, and then Longinus talks about sources of sublimity, how to get elevation in poetry, how to get elevation in your writings in literature. इसके लिए Longinus 5 sources की बात करते हैं, और ये 5 sources बहुत important है. And as you are the aspirant of UGC NET that is now conducted by NTA, National Testing Agency, this chapter is very important. There are several points that have been asked in various UGC examinations as well as the PhD entrance examination. और अगर आप preparation कर रहे हैं CUET की for PG English, then also this chapter is going to be very fruitful for you. So I request you watch the video till the end, and then like, share and comment, and finally subscribe the channel for more such videos. This is lecture number 3, and that is on sublime written by Longinus. Longinus is also known as Dionysius Longinus, or sometimes he is called as Pseudo Longinus, as his identity is not confirmed. When the essay was written, it's also not confirmed. When was he living? It's also not confirmed. So you could say that it is almost unanimous, right? ये unanimous भी बहुत सारे लोग हैं इस पर कि ये anonymously लिखा गया है, right? Authorship is still doubted and still debated, and for the first time publish कब हुई थी ये, right? First century में publish नहीं हुई थी. It was published during the Renaissance. Let's talk about Dionysius Longinus and his theory on sublime. Be ready, be attentive, and start watching. Sublimity. What is sublimity? से पहले let's see what was the essay on sublime. Why was it written? Like Horace's Ars Poetica, this was also written in the epistolary form. ये भी epistolary form में, it was also written in the form of letter. Point number 1. Point number 2, like Aristotle's Poetics. Like Aristotle's Poetics, मतलब Aristotle Poetic was a rebuttal. किस पर rebuttal थी? Against Plato's theory of mimesis. In the same way, this on sublime is also a rebuttal. और ये किसका rebuttal है? So you could see here the name of the writer. It is a response to work that of that period by Cassius of Callicti. Cassius of Callicti, a Sicilian rhetorician. सिसिली का एक rhetorician था, और उसी के ऐसे के उसी के response में the work on sublime was written, and there are total 17 chapters in the book on figures of speech, which have occupied critics and poets ever since they were written, and about a third of the manuscript is lost. We have only 2/3 of the manuscript, 2/3 of the essay, 1/3 जो है it has been lost, and it is written in Greek, right? Means Longinus was a Greek critic. Longinus is called to be the first romantic critic.
एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोमांटिक क्रिटिक। रोमांटिक क्रिटिक होता कौन है? आप किसको बोलोगे कि ये रोमांटिक क्रिटिक है? हु इज सेड टू बी ए रोमांटिक पोएट? रोमांटिक होता कौन है? क्या डेफिनेशन है रोमांटिक की? रोमांटिक क्रिटिक्स कौन होते हैं? तो रोमांटिसिज्म वो होता है दैट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिविटी instead of objectivity. Romantic poets focus on subjectivity. Number one, romantic poets focus on individuality, and as far as romantic critic is concerned, romantic वो होता है one who breaks away from conventions, जो कन्वेंशन से, जो ट्रेडिशन से, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल दोनों नहीं होता, he is called a romantic. Romantic is a person who doesn't believe in the said precepts, who doesn't believe only in maxims, only in proverbs, but he believes in his imagination, he believes in the power of imagination. और जो इन सबको फॉलो करता है, जो प्रिसेप्ट्स को फॉलो करता है, जो गॉडी लैंग्वेज को, डिक्शन को फॉलो करता है, उन सबको क्लासिकल कहा जाता है. एंड Horace was a classical and Longinus is a romantic critic. And who said that Horace was a romantic critic? तो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक किसने कहा है? तो देयर वाज अनदर क्रिटिक, उसका नाम था स्कॉट जेम्स. एंड स्कॉट जेम्स ने एक बुक लिखी थी मेकिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और मेकिंग ऑफ लिटरेचर में उसने बात की है लॉन्जाइनस की, राइट, एज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक. तो लॉन्जाइनस इज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक. ही broke the laws, he broke the rules, he broke the regulations that were established by Aristotle, that were established by Horace or other critics. और वो क्या रूल था जो इन्होंने ब्रेक किया है? जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था. अरिस्टोटल और प्लेटो, इन दोनों का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लिटरेचर का वो था मोरालिटी. एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी प्लेटो हैड बैंड लिटरेचर from his republic. Aristotle ने क्या किया? Aristotle supported the mimesis, but Aristotle said that the purpose of literature, the purpose of poetry is not only to arouse, not only to promote sensuality, but दूसरा इसका पर्पस भी है, वह है क्या? इंस्ट्रक्शन देना, वह टीचिंग करना, मोरल मैसेज देना. होरेस भी इसी को बाय एंड लार्ज फॉलो करता है. और जब हम लॉन्जाइनस पर आते हैं, लॉन्जाइनस डजंट बिलीव इन सच प्रिसेप्ट्स. लॉन्जाइनस हैज टोटली डिफरेंट व्यू, और डिफरेंट व्यू क्या है उस पर अभी आते हैं आगे वाले स्लाइड में. पूरे अटेंशन से बने रहिएगा. राइट, इट इज रिटन इन ग्रीक एंड एड्रेसेस टू टेरेंटियनस, अ रोमन ऑफ whom nothing is known, whom he addresses his on sublime. तो एड्रेशल वाला जो पर्सन है, he addressed his work on sublime to whom? रोमन नाम था उसका पोस्टुमियस टेरेंटियनस, राइट. पोस्टुमियस टेरेंटियनस को एड्रेस किया था ऑन सब्लाइम होरेस, Longinus ने. On the Sublime is a critical work and it examines more than 50 writers, more than 50 texts written before the arrival of Longinus. More than 50 ancient writers were examined under the lens of Sublime, right, under the lens of Sublime, which Longinus defines as man's ability through feeling and words to reach beyond the realm of human condition into greater mystery. Sublime means elevation, and sublime literature का purpose जब बताते हैं Longinus, what is the purpose of literature? तो the purpose of literature is to transport the reader, transport the audience
from this world to a different world, to a mysterious world, to a mystical world. Transportation. Literature must have the power to move the reader, to move the audience. And if literature doesn't have the power to move, it means this literature is not flawless, right? वो बिल्कुल बेकार का लिटरेचर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस वाज द प्रीसेप्ट, दिस वाज द फार्मूला, दिस वाज द थियरी propounded by Longinus. This is the sublimity. From here you are going to read a poem, and then while reading the poem you keep on soaring, right? You keep on transporting yourself. This is only a symbol of elevation, right? This is the symbol of sublimity. From down to up, this is sublimity, right? इसको sublimity कहा जाता है. Before Longinus there were 3 word formula in existence. और वो 3 word formula क्या था जो existence में था कि the purpose of literature, if it is poetry, then it has to instruct or it has to please, and if it is prose, then the purpose of literature was to persuade, right? These 2 formulas were there. Only the function of literature was if it was poetry, to instruct, to delight, and if it was prose, to persuade. This is called the 3 word formula. इसको 3 word formula कहा जाता है. ये बिफोर लॉन्जाइनस हुआ करता था. लॉन्जाइनस कहां गए? ही कम्स अ स्टेप अहेड, राइट? ही वायलेटेड द रूल्स. जो प्रीसेप्ट्स जो था, जो ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने वायलेट किया, एंड ही वेंट अ स्टेप अहेड. और अ स्टेप अहेड होकर के कहा जाते हैं, ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ सब्लिमिटी. इनके हिसाब से जो 3rd वर्ड के बाद जो 4th वर्ड आया है, द पर्पस ऑफ लिटरेचर में, इट इज टू मूव, वेदर इट इज रिटन इन प्रोज और इट इज रिटन इन पोएट्री. और if literature moves, अगर वो मूव्स करता है, दैट मीन्स इट हैज गॉट द सबलाइम स्टेटस. इसको सबलाइम स्टेटस मिल गया है. और उस सबलाइम स्टेटस की बात करते हैं. सबलिमिटी कंसिस्ट्स, किससे बनती है? Sublimity consists in certain distinction and consummate excellence in expression, right? Excellence in expression, and it is from this and no other source that the greatest poets and prose writers have gained their eminence and immortal fame. The effect of lofty passage is not to convince the reason of a reader, but to transport him. क्या काम करना है? रीडर को कन्विंस नहीं करना है, बट क्या करना है? बट ट्रांसपोर्ट हिम. कहां ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है? आउट ऑफ हिमसेल्फ. आउट ऑफ हिमसेल्फ उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है. इनवेरिएबली एन admirable speech casts a spell over us and eclipses that which merely aims at persuasion and pleasure. Persuasion and pleasure से ऊपर ले जा करके, right? Poetry has to shift the reader from this world to a different world, a totally mysterious world. और कैसे शिफ्ट कर सकता है? By sublimity. And sublimity आती कहां से है? Then he says that sublimity comes from grandeur of thought, from the capacity of strong emotions, right? वहां से आना शुरू होती है sublimity. And then he says that to achieve the sublimity, you have to be beware of false sublimity. उससे आपको बचना है. What is false sublimity? Then he coins 3 different words. Longinus opines that false sublimity is marked by the beautification of language. What is beautification of language? Ornamentation of language by implying irrelevant and unnecessary use of figures of speech. Unnecessary use of figure of speech, irrelevant figures of speech. To impose figure of speech without requirement, this is called beautification. But in fact it is not beautification, but it is false sublimity. Figure of speech and ornamentation of language, if they are used unnecessarily, then that क्या बना देते हैं? वो false sublimity की तरफ ले जाते हैं. And Longinus stated
the complexity and monotony in a tragic play in order to support his views on false sublimity. According to Longinus, there should not be anything pseudo-tragic in tragedy. Right? There should not be anything like pseudo-tragic in tragedy. If tragedy hai, then there must be tragedy. There should nothing like pseudo-tragedy or false tragedy. Flaws in diction mar the beauty of language. If you are using words and without using words you can't say anything, और अगर आपको वर्ड्स यूज करना है यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड इफ देयर इज एनी फ्लॉ देन इट विल मार द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड इट कैन नॉट अटेन द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द प्ले राइट. और वो अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द मिस यूज, बिकॉज ऑफ द जो है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, देन यू कैन नॉट अचीव सबलिमिटी. वो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी और वो क्या होगा, आप यूज भी करोगे वर्ड्स, अप्रोप्रिएट नहीं करोगे, दैट विल लीड टुवर्ड्स फॉल्स सबलिमिटी. इट इज जस्ट लाइक एलिमेंट ऑफ बॉडी which fails to work well due to the element, right? Or for this he coined the word timidity. Timidity means bombastic use of language. You have to use language, but you cannot use bombastic language. You cannot exaggerate too much. You cannot use hyperbolic language too much. Longinus का जो second word है, that is puerility. Longinus thinks that the triviality or puerility, puerility means triviality, trivial. Trivial means insignificance. जिसकी कोई अनइम्पॉर्टेंट जो हो वो था ट्रिवियलिटी, चाइल्डिश यूज ऑफ लैंग्वेज. लॉन्जाइनस का मानना है कि ट्रिवियलिटी इज अनदर फ्लॉ विच इज टू बी अवॉइडेड. प्योरिलिटी इज द अपोजिट ऑफ एलिवेशन ऑफ थॉट, राइट? ये एलिवेशन ऑफ थॉट की अपोजिट है. एलिवेशन ऑफ थॉट कब होगी? जब आइडिया जो है आपकी वो ग्रैंड हो, वो ट्रिवियल ना हो, एपिक टाइप आपकी आइडिया हो, राइट? फॉर इट इज नो डाउट a shallow and wise of style, while complexity is expected to cross over the limits of sublime. Longinus states that passion and thoughts vanish from the sublime when they are not based on true and faithful background. When the writer wants to reach the acme, the climax of sublime, and always in search of odd and base, trifling in order to attain sublime effect, the result is opposite and disastrous. It mars the beauty of his work of art. So he should save himself. कहां से बचाना चाहिए? From unnecessary use of figure of speech, unnecessary words, bombastic language, and finally parenthesis. It means cheap display of passion. Right? There must be strong passion, strong emotion. There is the absence of truth and originality of thoughts and feelings. The execution and display of thoughts and feelings becomes so faulty and affected that it happens quite devoid of wisdom and shabby on the part of the writer, who is highly pedantic. He unnecessarily takes refuge in all such artifices, और ये जो artifices हैं ये आपको सब्लिमिटी की तरफ नहीं ले जाते, वो false सब्लिमिटी की तरफ ले जाते हैं. Longinus thinks that when there is the cheap display of passion, जो childish passion है, which is not wanting in the work, there is the absence of sublime. Right? क्या कहते हैं? Cheap display of passions which is not wanting in the work, there is absence of sublime. Unthoughtful and unwise use of ornamentation of feelings and thoughts is necessary. If the work is based on genuine and true base, it will naturally reach the acme of sublimity. It will naturally कहां पे जाएगा? Right? The acme, the apex, the summit of sublimity. And while writing poetry, personal whims, orthodox views, and prejudices of the writer do not add any meaning to the beauty, do not add any meaning and beauty to the work. क्या करते हैं वो? It lacks value
एंड परमानेंस। इफ यू लाइक अलेक्जेंडर पोप, अगर आपने अपनी विम्स वहां पे डाल दी हैं, अगर आपने अपनी प्रेजुडिसेस वहां पे डाल दी हैं, अगर आपने अपने ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस वहां पे डाल दी हैं, योर वर्क कैन नॉट बी परमानेंट, यू कैन नॉट गेट इमोर्टैलिटी। क्या होगा वो? इट विल लीड टूवर्ड्स इम्परमानेंस, और थोड़ी दिन के बाद यू विल बी फॉरगॉटन, आप भूल जाएंगे पूरी तरह से। लॉन्जाइनस believes that the ugly and unwanted growth in literature is the result of the writer's childish enthusiasm in their pursuit of novelty and expression of ideas. Right? It is the sincerity and good taste of the writer which make him achieve immortality, which make him achieve sublimity, technical skill and elevated thoughts, sincere emotions, noble passions are of great importance to the creation of sublime works, and these are the 5 sources of sublimity according to Longinus, जिसको आप एमए के क्लास से, बीए के क्लास से पढ़ते आए हो। आइए थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, एक बार फिर से समझिएगा। these 3 words regarding the false sublimity. If you are using exaggerated language, if you are using false language for ट्रिवियल टॉपिक्स के लिए, अगर आप बहुत हाइपरबोलिक एग्जैजरेटिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्या होगा इससे? आपकी जो लिटरेचर है, आपकी पोएट्री है, इट विल कम टू नथिंग, राइट? दैट विल बी रेडिकुलस, सबलाइन नहीं होगा। क्या होगा वो? डिक्लाइन जरूर हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर पर childish use of language, you cannot use inappropriate figure of speech, you cannot impose figure of speech unnecessarily, you have to use very selected words, very जो है appropriate figures of speech to get sublimity, to get elevation in your writing. और अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है अपनी राइटिंग से, तो लॉन्जाइनस कहता है यू कैन कंपेयर योर सेल्फ, कि अगर इस मुद्दे पर होमर को लिखना होता तो कैसे लिख रहा होता, अगर इस पर प्लेटो को लिखना होता तो कैसे लिख रहा होता। आप अपने आप को कंपेयर करिए, फिर आप उस सबलिमिटी को अचीव कर पाओगे जो होमर ने अचीव की थी। राइट? लिटरेचर मस्ट हैव द मूविंग पावर, दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिटरेचर। राइट? मूविंग पावर इसके अंदर होना चाहिए जो आपको मूव कर दे। इसी से आपको एक चीज और याद आया, रोमांटिक एज में आप आकर के पढ़ोगे थॉमस डी क्विंसी को। थॉमस डी क्विंसी डिवाइडेड लिटरेचर इनटू 2 पार्ट्स, एक को बोलता है लिटरेचर ऑफ नॉलेज और दूसरा लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज and literature of power. किसका ये कंसेप्ट है? रोमांटिक क्रिटिक एंड पोएट नॉवलिस्ट थॉमस डी क्विंसी का। 2 टाइप का लिटरेचर है, एक तो हमको नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और दूसरा क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर। एंड दिस लिटरेचर ऑफ पावर इज फार बेटर दैन लिटरेचर ऑफ नॉलेज। और इस लिटरेचर ऑफ पावर के लिए थॉमस डी क्विंसी गिव्स द एग्जांपल ऑफ जॉन मिल्टन। और ये लिटरेचर ऑफ पावर वही है जिसके अंदर मूविंग पावर है, दैट इज ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ सबलिमिटी। उसको लिटरेचर ऑफ क्या कहा जाता है? लिटरेचर ऑफ पावर कहा जाता है। लिटरेचर मस्ट हैव द मूविंग पावर, तभी वो असली लिटरेचर है। इट इज द पावर ऑफ स्पीच व्हेन इट इज सब्लाइम और ट्रूली लॉफ्टी, दैट इट नॉट ओनली प्लीजेस बट एक्साइट्स, मूव्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड एलिवेट्स। ये लिटरेचर की पावर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इट नॉट ओनली प्लीजेस, प्लीजर तो है ही प्राइमरी में, एक्साइट करता है, मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और एलिवेट करता है। ये लिटरेचर के पावर है, ये होना चाहिए। ये सबलिमिटी का इफेक्ट है, ये सबलिमिटी का आउटकम है। एंड हाउ टू अटेन दैट सबलिमिटी, उस सबलिमिटी को अटेन कैसे करना है, सोर्सेस क्या है, क्या यूज किया जाए उस अटेनमेंट के लिए, सबलिमिटी के लिए। देन देयर आर 5 सोर्सेस टू गेट सबलिमिटी, एंड आउट ऑफ 5 जो फर्स्ट है दैट इज ग्रैंड्योर ऑफ थॉट। थॉट मस्ट बी सबलाइम, थॉट मस्ट बी ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। और अगर सुप्रीम क्वालिटी के थॉट्स हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग यूज होगी
और वो सबलाइम पर आपको ले जाएंगे। सबलिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। क्लियर है ना ये? सबलिमिटी इज द इको of the greatness of soul. If your soul is great, तो उस ग्रेट सोल से जो इको आती है ना, वो इको ही सबलिमिटी है। ग्रेट एक्शंस, और अच्छा क्या लगता है कि जो महान लोग हैं वो महान चीजें बोले तो अच्छा लगता है। छोटे लोग बड़ी चीजें कहते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, तो बड़े मुंह से बड़ी बात कहलवाई जाए तो सबलिमिटी अचीव होगी। ये ग्रैंड्योर ऑफ थॉट है। ग्रेट एक्सेंट्स शुड फॉल फ्रॉम द लिप्स ऑफ दोज whose thoughts have always been deep and full of majesty। जिसके थॉट्स फुल ऑफ मैजेस्टी हैं, जिसके थॉट्स डीप हैं, ग्रेट आइडियाज शुड कम थ्रू देयर माउथ्स। वहां से ग्रेट आइडियाज आनी चाहिए तो लिटरेचर सबलिमिटी अचीव कर सकता है। दो सबलिमिटी का जो फर्स्ट स्टेप है ग्रैंड्योर ऑफ थॉट, इट कैन नॉट बी टॉट, पढ़ाया नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी इनकलकेटेड बट इट इज इनेट, इट कम्स बाय बर्थ। ये वो जीनियस है, वो टैलेंट है that cannot be accomplished, it is not achievable, it comes through nature। ये नेचर के थ्रू आता है। आउट ऑफ द 5 सोर्सेज 2 ऐसे हैं जो इनेट होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रैंड्योर ऑफ थॉट एंड कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, दीज 2 आर इनेट। एंड जो बाकी के 3 हैं वो इनेट नहीं है। दे कैन बी अकम्प्लिस्ड, दे कैन बी स्किल्ड, दे कैन बी अचीव्ड। तो ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। नेचर और स्किल का जो कॉम्बिनेशन है वो है सबलिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। ग्रैंड्योर ऑफ थॉट नंबर 1, नंबर 2 कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। फॉल्स इमोशन से बचना है, और फॉल्स इमोशन से तभी बच सकते हो जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन को बियर करने की कैपेसिटी हो। ये लाइन खुद लॉन्जाइनस की है। आई वुड कॉन्फिडेंटली अफर्म दैट नथिंग मेक्स सो मच फॉर ग्रैंड्योर एज ट्रू इमोशन इन द राइट प्लेस। इमोशन कैसा? ट्रू इमोशन। और कहां पर? True emotion in the right place. For it inspires the words as it were with a wild gust of mad enthusiasm and fills them with divine frenzy. Emotion का proper use करना। If you are writing a tragedy, if you are watching a tragedy, then you must have that tragic emotion, जिसकी बात अरिस्टोटल करता है pity and fear। If you are writing comedy, then you must have the proper emotion। ट्रेजेडी में कॉमेडी नहीं और कॉमेडी में ट्रेजेडी नहीं आनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसको बियर करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है पोएट की, वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आई वुड कॉन्फिडेंटली अफर्म दैट। और अगर वो आपका ट्रू इमोशन ट्रू प्लेस पर है, राइट प्लेस पर है, तो वही आपकी सबलिमिटी में कन्वर्ट करेगा, वही आपको सबलाइम की तरफ ले जाएगा। एंड ऑन द थर्ड, जो थर्ड सोर्स है ऑफ सबलिमिटी का, दैट इज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कैन बी लर्न, कैन बी अकम्प्लिस्ड, इट इज नॉट इनेट, इट इज an art and art can be mastered। आप इसको मास्टर्ड कर सकते हो। और इसीलिए पहले बता रहा था कि फॉल्स सबलिमिटी से बचना है तो वहां इन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच को अवॉइड करना है। फिगर ऑफ स्पीच कैन नॉट बी इम्पोज्ड। यहां पर कहता है कि फिगर ऑफ स्पीच तो वो है ना, अ फिगर इज इफेक्टिव ओनली when it appears in disguise, it is not open। when it appears in disguise, then it could be effective। and then he talks about basically 4 figures of speech that make a work sublime। और वो 4 फिगर ऑफ स्पीच कैसे कौन कौन से हैं? rhetorical question, ascendant, hyperbaton and periphrasis। these are the 4 figures of speech। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, खास करके वो जो इसी बार यूजीसी नेट दे रहे हैं। रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर की जरूरत नहीं होती,
अपने आप में आंसर वो लिए होते हैं, उनको रेटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। राइट, अपने आप में आंसर, खुद ही आंसर होते हैं अपने क्वेश्चन का, उनको रेटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। एसिंडेटन किसे कहा जाता है? एसिंडेटन इज द मिसिंग ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन को मिस कर देना। एसिंडेटन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एक्सक्लूड्स कंजंक्शंस एंड, और, बट, ये जो यट, दो जो कंजंक्शंस है इनको छोड़ देना, इनको मिस आउट कर देना, इसको एसिंडेटन कहा जाता है। और मिस आउट क्यों किया जाए? फॉर इफेक्टिव यूज, इफेक्टिव बनाने के लिए, एम्फेसिस के लिए। अ लिटरेरी डिवाइस दैट एक्सक्लूड्स conjunctions and, or, but, for, nor, so, yet to add emphasis. For example, एक एग्जाम्पल देखिए, जूलियस सीजर का एग्जाम्पल है, I came, I saw, I conquered। होना क्या चाहिए था? I came and I saw and I conquered। बट यहां पर दोनों कंजंक्शंस को मिस आउट कर दिया गया है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एसिंडेटन। और एक तो रेटोरिकल क्वेश्चन की बात करता है फिगर ऑफ स्पीच में, अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच में। नंबर 2 पर बात करता है एसिंडेटन की, और नंबर 3 पर बात करता है एक और फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबेटन की। व्हाट इज हाइपरबेटन? हाइपरबेटन इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट मींस पास्ड ओवर, ट्रांसपोज्ड। और फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबेटन है इन्वर्जन का, दैट यूजेस डिसरप्शन और इन्वर्जन ऑफ कस्टमरी वर्ड ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव इफेक्ट। इन्वर्जन एक ग्रामर का चैप्टर है, एडवर्ब में आता है, जहां पर वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाए उसको इन्वर्जन कहा जाता है। verb comes first, subject follows, that is called inversion. So is the case with hyperbaton figure of speech। यहां पर जो जिसका एडजेक्टिव होगा उसके साथ ना करके बाद में आ जाएगा। जैसे ग्रेट अलेक्जेंडर ना कह के आप बोलते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये किसका एग्जाम्पल है? हाइपरबेटन का। आप बोलिए फायर अनक्वेंचेबल, होना क्या चाहिए? अनक्वेंचेबल फायर, बट आपने बोल दिया फायर अनक्वेंचेबल, दैट इज हाइपरबेटन। रिवर्सल कर दिया है आपने, राइट, ये इन्वर्ट कर दिया है आपने। द टर्म may also refer to a figure in which language takes a sudden turn, usually an interruption। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल अरिस्टोटल से है, दूसरा एग्जाम्पल है शेक्सपियर से। सम राइज बाय sin, सम सब्जेक्ट है, some is subject here, rise is verb, right? Some rise and some by virtue fall। होना यहां क्या चाहिए था? some is another subject, होना चाहिए था verb। तो क्या बनता था? some fall by virtue, जैसे ये पहले वाला बना था ऐसे बनना था, but for the emphasis the word order has been changed and this figure of speech is called hyperbaton। जब फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगा इन डिटेल फिर से आऊंगा with a lot of examples। दूसरा एग्जाम्पल अरिस्टोटल का दिया है, one swallow does not a summer make nor one fine day। राइट, ये one swallow does not a summer make nor one फाइन डे। समर मेक ये बना है, बनना क्या था? वन swallow does not make a summer, सॉरी डज नॉट के बाद आना था मेक, राइट, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आना था, बट दूसरा गया है, वर्ब उसके बाद में आई है। दिस इज कॉल्ड हाइपरबेटन। समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, जरूर मेंशन करिएगा वीडियो को। और फिर से एक बार कहूंगा कि वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे आपके पास आए, जैसे अपलोड हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए।
और हाँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर आप बहुत सारे लोग पढ़ाते हुए मिल जाते हैं, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग तरीके से। बट आई प्रॉमिस कि इफ यू कंपेयर माय वीडियो विद दोज वीडियोस जो कि चैनल्स पर पड़ी हैं, डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बाकी कोई चैनल देखोगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप यही चैनल देखोगे जिसका नाम है द न्यू लाइसियम, इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये मेरा अपना भरोसा है और ये मेरा जो पिछले 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लिटरेचर, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, दैट इज नॉट माय प्राइड, राइट। चलिए, हाइपरबेटन एंड थर्ड पर वो बात करता है पेरीफ्रेजिस की, और पेरीफ्रेजिस का मतलब होता है रिपीटिशन, राइट, चीजों को रिपीट करना, घुमाते रहना, वो भी फॉर द sake of emphasis. So these are the 4 figures of speech that are discussed by Longinus in his theory on sublime. Appropriate figure of speech, one has to learn where to use and one has to learn which figure of speech has to use. सबको करना है, but it has to be used very wisely. बहुत wisely, बहुत intelligently use करना है, otherwise कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ और दोगे, और होगा क्या, वो ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज होगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज होगा, और वो सबलाइन ना हो करके फॉल्स सबलाइन जरूर हो जाएगा। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये फिगर ऑफ स्पीच में थर्ड था जो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, 4th नंबर पर है नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। पूरा लिटरेचर खेल ही होता है डिक्शन का। इफ यू हैव ग्रेटनेस ऑफ थॉट, इफ यू हैव द कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड इफ यू नो proper use of figures of speech, without diction how can you write, without diction, without words how can you express yourself? So proper choice of word is called diction. Proper choice of words is called diction, and uses of metaphors and ornamental language, appropriate language, that is called nobility of diction. And finally the 5th source is dignity of composition. You know everything, you have everything, and you have to be very dignified in your writing, in your composition, right? Dignity of composition का मतलब क्या है? Arrangement of words. Proper arrangement of words will express proper emotions, and proper arrangement of words will bring sublimity, right? वही sublimity को लेकर के आएंगे। और वो जो arrangement of कंपोजिशन है वो ब्लेंडिंग है। किसकी ब्लेंडिंग है? जो 4 पिछले वाले जो सोर्सेज हैं उन सब की ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग ऑफ थॉट्स, ब्लेंडिंग ऑफ इमोशंस, ब्लेंडिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। और कहां ब्लेंड करना है, कैसे करना है? इन अ हार्मोनियस होल, हार्मनी में लेकर के आना है, एक सामंजस्य में उनको बिठा देना है, दैट इज हार्मोनियस होल। अ हार्मोनियस कंपोजिशन मेक्स अप फॉर द डिफिशियंसी ऑफ अदर्स एलिमेंट्स। अगर कहीं कुछ कमी भी रह गई है तो अगर हार्मोनियस कंपोजिशन है तो उस डिफिशियंसी को भी कंप्लीट करने का, खत्म करने का काम करता है। वो है क्या? वो है डिग्निफाइड कंपोजिशन। ऑलराइट, तो दीज वर द 5 सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना क्लियर हुआ हो तो जरूर शेयर करिए। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, आपने देखा भी होगा। एंड फाइनली वन मोर थिंग, ये क्लासिकल पीरियड है और उस क्लासिकल पीरियड में लॉन्जाइनस इज सेड टू बी द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। क्यों कहा जाता है रोमांटिक क्रिटिक? बिकॉज ही डिडंट एडहेयर टू द रूल्स गिवन बाय अदर क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम या बिफोर हिज टाइम। यहां पर देयर इज समथिंग न्यू, और यहां पर न्यूनेस क्या थी? न्यूनेस ये थी कि he talked about sublimity, he talked about the literature that had the power of moving, right? Moving power की बात किया तो he became a bit different. He talked about individuality, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने figure of speech की बात की थी। पहले ऐसे राइटर थे who quoted almost 50 राइटर्स जो उनके पहले के टाइम के थे, right? वो क्लासिकल पीरियड था। और in England 18th century is known as
न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड का मतलब क्या है? न्यू क्लासिकल का मतलब है कि जो पोएट्स ऑफ 18th सेंचुरी थे, दे वर फॉलोइंग द पोएट्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी एंड एडी, उन क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे थे। एंड इन इमिटेशन ऑफ लॉन्जाइनस पेरिहप्सस, पेरिहप्सस का मतलब ही ऑन सबलाइम होता है। पेरिहप्सस ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है ऑन द सबलाइम। और इसी के इमिटेशन में हाउ टू गेट एलिवेशन, सबलाइम एलिवेशन पाने की जो ये बात कर रहे थे, इन इमिटेशन ऑफ दिस एलिवेशन अलेक्जेंडर पोप रोट एन एसे। Alexander Pope in the 18th century wrote an essay under the title Peribathos, और इसका मतलब था The Art of Sinking in Poetry, How to Sink in Poetry। ये किसकी बात कर रहे थे? How to go up in poetry, How to get upliftment, और ये किसकी बात कर रहे हैं? How to Sink in Poetry। ये पेरीबाथोस है, राइट, ये पेरीबाथोस है। और ये क्या है? ये है पेरीहप्सस, राइट। पेरीहप्सस का मतलब ऑन सबलाइम और पेरीबाथोस का मतलब सिंकिंग इन पोएट्री। बाथोस एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है और जिसको क्वाइन करने वाले यही अलेक्जेंडर पोप थे। ऑलराइट, तो ये अलेक्जेंडर पोप का एसे है और शायद उनका इकलौता एसे भी है जो कोई अप्रोच फॉर्म में, बाकी तो ही वाज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, राइट। हीरोइक कपलेट लिखते थे और उन्हीं के नाम पर पूरा एज ही है, जिसको आप कौन सा एज कहते हो? जिनको आप कहते हो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। एज ऑफ पोप कहा जाता है, ऑगस्टिन एज कहा जाता है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। तो पेरीहप्सस ऑन सबलाइम एंड पेरीबाथोस आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री, ये लॉन्जाइनस है और ये है अलेक्जेंडर पोप। ऑलराइट, ऑलराइट देन थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो जरूर शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा कुछ नए क्रिटिक्स पर, नए टॉपिक पर होगा, और दैट विल बी द 4th लेक्चर इन द सीरीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर showing your patience, and thank you so much for liking, sharing and subscribing the channel. Thank you in advance. Right, चलिए, all the best, मिलते हैं जल्दी नए चैप्टर के साथ। गुड लक।